Hi friends, welcome to today's session. So in this session we are going to continue our discussion on principle and practices of banking one-liner part 3. So already I have provided you two part of this one-liner and this is our part 3 lecture. So let's begin our discussion. Our methodology will remain the same, that first of all we will see the MCQ portion, and then after we will see the first of all we will have the MCQ and the concept, and then we will see the MCQ. So let's begin. The first point is, let me zoom it first so that you can see it clearly. Let me zoom it. Okay, so now I think it is visible now, clearly visible to you. Okay, so fine. So now let's continue our discussion. The first point is, bank must specify loan disposal timeline for loan up to 2 lakh. So for loan up to 2 lakh, bank must specify loan disposal timeline. So this is regarding module B. As you can see, rejected loan application under rupees 2 lakh require written explanation. यानी 2 लाख तक के कम का यदि लोन आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है. फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी एक बैंक फंड अवेलेबिलिटी फॉर लैंडिंग. लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बैंक का कितना फंड जो है लैंडिंग के लिए अवेलेबल है. वर्किंग कैपिटल लोन जो है डेली बिजनेस ऑपरेशन को क्या करता है दोस्तों, सपोर्ट करता है. सो वर्किंग कैपिटल लोन सपोर्ट डेली बिजनेस ऑपरेशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला याद रख लीजिए, इन्वेंट्री प्लस अकाउंट रिसीवेबल माइनस अकाउंट पेएबल. सो प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. दिस इज नथिंग बट इन्वेंट्री, you add inventory with account receivable and you subtract the account payable from it, you will get working capital, right? So this is the formula for working capital requirement. Now the next point is regarding term loans. So let's see what is the point regarding term loans. So you can see that term loan involve periodic payment over a fixed period. In the term loan we have a periodic payment. हमारे पास हम क्या करते हैं, टर्म लोन में periodic payment होता है, right? over the fixed period payment over a fixed period, right? And what is the next point? The next point is regarding working capital loan or short term loan. You know, working capital loan or short term loan, and whereas term loan is a long term loan. This is the difference between working capital loan and term loan. Please remember this point. And the next point that we have is regarding adequate working capital. Adequate working capital is crucial for business survival. Obviously we should have adequate working capital for business survival. Business progress depend on sufficient working capital, and shortage of working capital leads to input deficit while excess result in extra cost. So these are the shortcomings, that if you have shortage then it results in input deficit while excess result in extra cost. So these are the points. Now let's do some MCQs based on this point. आइए दोस्तों इस पे हम लोग कुछ MCQs कर लेते हैं. तो फर्स्ट और एक और पॉइंट है, फिक्स कैपिटल के अंदर लैंड और मशीनरी जैसे एसेट आते हैं. इफेक्टिव ऑपरेशन फिक्स एसेट का, इसके लिए आपको सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है. पहला सवाल है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है जिसके लिए बैंक जो है लोन डिस्पोजल टाइमलाइन को स्पेसिफाई करे. तो मैंने आपको बताया था कि यह है 2 लाख. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब रिटर्न एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है. लोन, मान लीजिए कि किसी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो उस केस में कब रिटर्न एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैंने आपको बताया था कि जो लोन 2 लाख तक का है उसमें रिटर्न एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है. लिक्विडिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करता है कि कितना फंड अवेलेबल है लैंडिंग के लिए. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बिजनेस का कौन सा एस्पेक्ट है जहां पे जो कि वर्किंग कैपिटल लोन प्राइमरली सपोर्ट करती है. तो मैंने बताया था कि वर्किंग कैपिटल लोन जो है डेली बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करती है. ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है. क्या फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम लोग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को निकालने का जो तरीका है, उसमें इन्वेंट्री सबसे पहले लीजिए, उसमें अकाउंट रिसीवेबल को जोड़िए और फिर अकाउंट पेएबल को माइनस कीजिए. किस तरह का लोन में पीरियोडिक पेमेंट होता है ओवर अ फिक्स पीरियड. वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, मॉर्गेज लोन. तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स पीरियड के लिए जो हमारा पीरियोडिक पेमेंट होता है उसको हम लोग टर्म लोन कहते हैं. ऑप्शन बी सही जवाब है. क्या वर्किंग कैपिटल लोन शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है. तो वर्किंग कैपिटल लोन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है. टर्म लोन के बारे में पूछा जाए तो लॉन्ग टर्म होता है. एडुकेट वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी है बिजनेस सर्वाइवल के लिए. ऑप्शन ए कह रहा है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है. ऑप्शन बी कह रहा है कि टैक्स को कम करेगा. ऑप्शन सी कह रहा है कि ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एक्सपेंस को कवर करेगा. ऑप्शन डी कह रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करता है. तो दोस्तों देखिए, वर्किंग कैपिटल एडुकेट होना बहुत जरूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये आपके शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल एक्सपेंस को कवर करता है. बिजनेस प्रोग्रेस किस चीज़ पे डिपेंड करता है. मार्केट कंपटीशन पे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल पे. बिल्कुल सही जवाब है, सफिशिएंट वर्किंग
कैपिटल। तो यदि हमारे पास वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट होगा तो हमारा बिजनेस प्रोग्रेस करेगा। शॉर्टेज यदि हो जाए वर्किंग कैपिटल का तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनपुट डेफिसिट होगा तो ऑब्वियसली हमारा इनपुट डेफिसिट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। किस तरह के एसेट के अंदर फिक्स कैपिटल के अंदर कौन कौन से एसेट आते हैं, तो लैंड और मशीनरी आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ फिक्स एसेट के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए दोस्तों सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल जरूरी है। तो यदि आप अपने फिक्स एसेट को एफिशिएंटली इफेक्टिवली ऑपरेट करना चाहते हैं देन यू नीड टू हैव सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं वर्किंग कैपिटल जो है क्या कवर करता है, वो पॉइंट जरा देखिए। वर्किंग कैपिटल व्हाट डज इट कवर। सो देखिए दोस्तों वर्किंग कैपिटल क्या क्या कवर करता है, तो वर्किंग कैपिटल फॉलो अ साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू कैश। तो वर्किंग कैपिटल एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, रॉ मटेरियल से लेके कैश तक इट फॉलो द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, अब दोस्तों साइकिल ड्यूरेशन जो है वो इंडस्ट्रीज के क्रॉस वेरी करता है और टाइप्स ऑफ गुड के क्रॉस भी वेरी करता है। तो साइकिल ड्यूरेशन वेरीज अक्रॉस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंट इंडस्ट्री का, सभी इंडस्ट्री का अपना अलग अलग वर्किंग कैपिटल साइकिल स्पीड होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है ड्यूरेशन बेस्ड पे डिफर करता है। इट डिफर्स इन ड्यूरेशन बेस्ड ऑन गुड्स टाइप। तो ड्यूरेशन वाइज अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि गुड्स का टाइप क्या है। जैसे कि सीजनल इंडस्ट्री है तो सीजनल इंडस्ट्री का फ्लक्चुएटिंग स्टॉक नीड होता है, राइट। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे सीजनल इंडस्ट्रीज होते हैं इनका जो है अपना इनका कैसा होता है दोस्तों, फ्लक्चुएटिंग स्टॉक नीड होता है। फंड को टाइड अप किया जाता है करंट एसेट में, क्विकर साइकिल के कारण आपका टर्नओवर बढ़ेगा। आइए दोस्तों कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं इस पे, जो भी कंसेप्ट मैंने अभी आपको देखा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सो लेट्स सी सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल प्राइमरीली क्या कवर करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस एंड फाइनेंसिंग नीड, मार्केटिंग कंपनी, एम्प्लॉय सैलरी। तो देखिए एक्सपेंसिंग एंड फाइनेंसिंग नीड को कवर करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कवर नहीं करता। ऑप्शन बी सही जवाब है। किस तरह के प्रोसेस में वर्किंग कैपिटल फॉलो करता है, कौन सा प्रोसेस वर्किंग कैपिटल फॉलो करेगा, लीनियर, चायोटिक, साइक्लिक, स्टैटिक। तो इस प्रोसेस इट फॉलो अ साइक्लिक प्रोसेस। दोस्तों जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है इसका जो ड्यूरेशन होता है वो इंडस्ट्रीज में कैसे वेरी करता है, टाइप्स ऑफ गुड में कैसे वेरी करता है, तो ये गवर्नमेंट रेगुलेशन पे डिपेंड करता है, स्टॉक मार्केट पर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल से इन्फ्लुएंस होता है, या इंडस्ट्री और गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। ऑब्वियसली दोस्तों वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगा और गुड के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अलग इंडस्ट्रीज का सेम या वेरिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल स्पीड होता है, बताइए। सेम होता है, वेरिंग होता है, स्लोअर साइकिल होता है लार्ज इंडस्ट्री के लिए। ऑप्शन डी का रहा है कि ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक क्लाइमेट पे। तो दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग वर्किंग कैपिटल साइकिल स्पीड होता है, प्लीज रिमेंबर। दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल साइकिल के ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एम्प्लॉय का सैलरी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, गुड्स टाइप। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है, गुड्स टाइप। गुड्स टाइप एक ऐसा फैक्टर है जो कि ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग साइकिल कैपिटल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या करेक्टराइज करता है सीजनल इंडस्ट्री के स्टॉक नीड को। ऑप्शन ए कह रहा है कि कंसिस्टेंटली हाई स्टॉक नीड, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लक्चुएटिंग स्टॉक नीड, सी कह रहा है स्लो स्टॉक नीड, डी कह रहा है नो स्टॉक नीड। तो दोस्तों स्टॉक का जो रिक्वायरमेंट होता है ना सीजनल इंडस्ट्री का वो कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये इसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कौन सा फंड टिपिकली टाइड अप होता है वर्किंग कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में। तो करंट एसेट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट एसेट को टाइड अप किया जाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपके पूछा जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो स्पीड है और टर्नओवर में क्या रिलेशन है। फास्टर साइकिल के कारण लोअर टर्नओवर होगा, क्विकर साइकिल के कारण हायर टर्नओवर होगा, दो अनरिलेटेड है। स्लोअर साइकिल के कारण स्लो एक्सपेंस होगा। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि यदि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो स्पीड है ज़्यादा होगा तो टर्नओवर ऑब्वियसली आपका ज़्यादा होगा। आइए दोस्तों हम लोग कुछ कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस सम कंसेप्ट। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो डील करता है किससे, करंट एसेट से और लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है और उसे एक साल के अंदर रिपेबल किया जाता है। करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल नीड को मीट करने के लिए यूज करते हैं और एसेट को एक्वायर करने के लिए यूज करते हैं। करंट लायबिलिटी जो है बिजनेस साइकिल के साथ अलाइन होता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके, एंड वी विल डू सम एमसीक्यूज आल्सो सो दैट द कंसेप्ट बिकम क्रिस्टल क्लियर टू यू। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द मोर पॉइंट व्हाट वी हैव। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक बोरोइंग। दोस्तों बैंक बोरोइंग के बारे में बताया जा रहा है कि बैंक बोरोइंग जो है अलग होता है टोटल करंट लायबिलिटी से, जिसको हम लोग बैंक बोरोइंग बोलते हैं। अभी मैंने आपको सीएल के बारे में बताया, शॉर्ट टर्म होता है, राइट। तो दोस्तों तो आप देखिए बैंक बोरोइंग और करंट लायबिलिटी में डिफरेंस होता है। अब जैसे करंट एसेट जैसे कि लिक्विड एसेट होता है उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिए। अब दोस्तों फिनिश गुड्स क्या होता है, फिनिश गुड्स को आप एक साल के अंदर बेच सकते हैं। यू कैन सेल द
फिनिश गुड विद इन 1 ईयर, राइट। अब इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस आएगा या फिनिश गुड्स आएगा। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स ये तीनों आता है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड यदि एसेट आपका एक्सेस है, इस कारण से अननेसेसरी कॉस्ट आता है। वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है कि आपका करंट एसेट ज़्यादा हो गया, सो यदि करंट एसेट सरप्लस है तो उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं। और करंट लायबिलिटी, जिसमें से आप बैंक बोरोइंग को माइनस कर लीजिए, क्योंकि मैंने बोला था ना कि बैंक बोरोइंग और टोटल करंट लायबिलिटी में सेपरेशन होता है। तो करंट लायबिलिटी में से आप बैंक बोरोइंग को माइनस कर लीजिए, तो ये आपका करंट एसेट का हिस्सा होता है, ठीक है। तो वो करंट एसेट का हिस्सा नहीं होता है, वो करंट एसेट के एक हिस्से को फंडिंग करता है। तो करंट लायबिलिटी जो है इट फंड पार्ट ऑफ करंट एसेट एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग, और जो रिमाइंडर होता है ना उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप करते हैं। देखिए समझिए बात को, आपको करंट एसेट को फंड करना है, तो एक तो आप करंट लायबिलिटी से ले लीजिए, इसमें बैंक बोरोइंग को माइनस करके, और कुछ जो फंडिंग होता है वो कहाँ से होता है, WCG से होता है, यानी वर्किंग कैपिटल गैप से होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट का सरप्लस होना ये हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल गैप होता है, राइट। तो करंट एसेट सरप्लस क्यों है, क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल गैप है। तो सीए का दो पार्ट हो गया, एक तो गया करंट लायबिलिटी माइनस बैंक बोरोइंग, और एक हो गया आपका WCG यानी वर्किंग कैपिटल गैप। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच हेल्प यू इन दिस पेज पे न्यूमेरिकली पूछा जाता है, इसमें हेल्प कर सकता है आपको। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट प्राइमरीली क्या इन्वॉल्व करता है। लॉन्ग टर्म एसेट को मैनेज करना, बिल्कुल गलत। ये करंट एसेट और लायबिलिटी से डील करता है, बिल्कुल सही। कितना टिपिकल रिपेमेंट पीरियड होता है करंट लायबिलिटी का, तो विद इन अ ईयर होता है, एक साल के अंदर आपको रिपेमेंट करना है करंट लायबिलिटी के लिए। दोस्तों आपको यदि AFM और PPB को फास्ट रिवीजन करना है, इफ़ यू वांट टू रिवाइज AFM एंड PPB इन अ फ्लैश, तो दोस्तों आपके लिए हम लेकर आए हैं कैप्सूल कोर्स। यानी दोस्तों जो आप PDF देख रहे हैं इसमें वन लाइनर आपको कैप्सूल के फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप यदि गो थ्रू हो जाए, 1000 पॉइंट्स है, देयर आर 1000 पॉइंट्स। यदि आप इन 1000 पॉइंट से गो थ्रू हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप सब के सब पॉइंट कवर कर लेंगे। और उसके बेसिस पे दोस्तों आपको मैं सफिशिएंट MCQ भी दूंगा, ताकि आप यदि उतना MCQ प्रैक्टिस कर लें तो निश्चित रूप से आपका PPB और AFM क्वालिफाइड है। तो यदि आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा कैप्सूल कोर्स को परचेज करने का। आपको मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा हूँ 40% का, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। So you can take help of these materials for your preparation. Now let's move forward. So the next point is primary purpose क्या है करंट लायबिलिटी का। तो लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्ट करना, वर्किंग कैपिटल नीड को मीट करना, एसेट को एक्वायर करना, यस बिल्कुल करेक्ट। तो करंट लायबिलिटी को क्या, एक तो है कि हमारा एसेट एक्वायर करने के लिए होता है, और दूसरा है कि वर्किंग कैपिटल की नीड्स को हम लोग मीट करते हैं। करंट लायबिलिटी किससे अलाइन होता है, बिजनेस के ओवरऑल डेप्ट से, बिजनेस के रेवेन्यू से, बिजनेस के साइकिल से। तो ऑब्वियसली बिजनेस के साइकिल से ये अलाइन होता है। क्या आप बैंक बोरोइंग को टोटल करंट लायबिलिटी का पार्ट मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। मैंने आपको बोला था कि बैंक बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो करंट एसेट का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है करंट, तो करंट का मतलब क्या हुआ कि क्विक, ये लिक्विड होता है, जिसको आप कैश में बदल सकते हैं, राइट। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, which can be converted into cash more easily। तो ये करंट एसेट का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि कितना समय लगता है फिनिश गुड्स को बिकने में। एक वीक में बिक जाएगा, एक मंथ में बिक जाएगा, विद इन ईयर, तो विद इन ईयर सही जवाब है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि इन्वेंट्री के कैटेगरी में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। फिनिश गुड्स आते हैं, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स आएंगे, ऑफिस सप्लाईज आएंगे, या मार्केटिंग मटेरियल आएंगे। तो दोस्तों इन्वेंट्री में तीन चीज़ आएंगे, रॉ मटेरियल आएंगे, आपके वर्किंग प्रोग्रेस आएंगे, और फिनिश गुड्स आएंगे। इट इन्वेंट्री इंक्लूड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपके पास यदि एक्सेस एसेट है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, टर्नओवर घटेगा, कैश फ्लो इंप्रूव होगा, लायबिलिटी कम होगा। तो दोस्तों एक्सेस एसेट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपका टर्नओवर कम होगा, इट रिड्यूसेस योर टर्नओवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो it reduces your turnover, this is the main point, please remember it. Okay, so having excess asset reduces your turnover. So now let's see the next point that we have. So now next point is working capital gap क्या होता है, surplus of current asset, shortfall of current asset, total of current asset and liability and the bank borrowing. तो working capital gap क्या होता है, it is a surplus of current asset, sorry, it is the shortfall of current asset, right. I think it is surplus, there is a mistake, let me clear it. I think it is surplus of current asset, मैंने अभी आपको बताया था, yes correct, surplus of current asset not shortfall. Okay, आपसे पूछा जा रहा है कि करंट एसेट का कौन सा हिस्सा है जो करंट लायबिलिटी टिपिकली फंड करते हैं। तो ऑब्वियसली एक पोर्शन को फंड किया जाता है, करंट एसेट के एक पोर्शन को हम लोग करंट लायबिलिटी से फंड करते हैं, राइट।
वर्किंग कैपिटल गैप क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वर्किंग कैपिटल गैप रिप्रेजेंट करता है कि आपका करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंटरप्रेन्योर जो है अपने वर्किंग कैपिटल गैप को फाइनेंस करेंगे कैपिटल से या लॉन्ग टर्म सोर्स से, जिसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। याद रखिएगा, आप देखिए पॉइंट को समझिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, या वो अपने वर्किंग कैपिटल गैप के जो एक हिस्सा है उसको वर्किंग कैपिटल गैप को या लॉन्ग टर्म सोर्स को मार्जिन से फाइनेंस करेंगे, राइट। तो वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला क्या हो गया? CA करंट एसेट माइनस CLOBB, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि CA के अंदर एक तो हमारा WCG आ गया और एक हो गया CL माइनस बैंक बोरोइंग। तो वही चीज़ है, वही फॉर्मूला है कि WCG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CA प्लस CL माइनस OBB, ठीक है। इसमें से ये सिंपल सी बात है। देखिए मैं फिर से समझा दूँ आपको, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। मैंने क्या बोला कि जैसे ये देखिए, ये आपका करंट एसेट है, तो इसका एक हिस्सा तो आपका करंट लायबिलिटी से फुलफिल हो रहा है और जो बाकी बच रहा है वो वर्किंग कैपिटल गैप हो रहा है। और इसमें से करंट एसेट में से कौन सा बैंक बोरोइंग को माइनस करना है, तो फॉर्मूला नहीं हो जाएगा CA माइनस BB, सॉरी CL माइनस BB प्लस WCG इज इक्वल टू CA, यानी कि WCG का फॉर्मूला नहीं हो जाएगा CA माइनस CL OBB। CLOBB मतलब क्या हुआ? करंट एसेट अदर देन बैंक बोरोइंग। ये वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल आता है हर एक साल, ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। अब दोस्तों ये तो वर्किंग कैपिटल गैप था। अब ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म सोर्स एंड यूज। तो दोस्तों आपका जो लॉन्ग टर्म सोर्स है और आपका जो लॉन्ग टर्म यूज है उसको माइनस कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, इसको NWC कहते हैं। तो NWC का फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस CL, ये दूसरा डेफिनेशन है नेट वर्किंग कैपिटल का। सो दीज आर द डेफिनेशन यू मस्ट रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। सो NWC क्या रिप्रेजेंट करता है? NWC रिप्रेजेंट करता है मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है या लॉन्ग टर्म फंडिंग को रिप्रेजेंट करता है करंट एसेट के लिए। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा? लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। करंट रेशियो यदि आपका 1 से कम है तो ये अनफेवरेबल होता है। जो टर्नओवर मेथड है ना, वो नायक और वाज कमेटी के रिकमेंडेशन से आया। ये क्या करता है कि ये जो नायक कमेटी है ये वर्किंग कैपिटल लिमिट एट 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल टर्नओवर को कनेक्ट करता है और 5% मिनिमम मार्जिन मेंटेन किया जाता है इसमें। तो ये जो नायक कमेटी का मेथड है ये वर्किंग कैपिटल लिमिट है 20% प्रोजेक्टेड कैपिटल को कैलकुलेट करता है। एक्सेस NWC जो है बैंक के फाइनेंस लिमिट को अफेक्ट करेगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको कैप्सूल PDF, ये जो मैं आपको PDF शेयर कर रहा हूं, इसकी रिक्वायरमेंट है, कैप्सूल कोर्स कैप्सूल MCQ रिक्वायरमेंट है, तो मात्र 99 रुपीज़ में मैं आपको एक सब्जेक्ट का कैप्सूल PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं नंबर आपको शो कर देता हूँ। तो मात्र 99 रुपये में आपको इसका कैप्सूल PDF में प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया है कि प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस प्रकार से मैंने सफिशिएंट MCQ डाल रखे हैं और सफिशिएंट थ्योरी भी डाल रखे हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। तो मात्र 99 रुपये में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल बताऊँगा कि कैसे आपको इसे एक्सेस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि किस टर्म के थ्रू हम लोग वर्किंग कैपिटल गैप के एक पार्ट को फाइनेंस करते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स से, उस टर्म को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज द क्वेश्चन। सो विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइनेंसिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप फ्रॉम कैपिटल और लॉन्ग टर्म सोर्सेज? तो दोस्तों इसके लिए क्या इसका सही जवाब है? हमारा मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन हम वर्किंग कैपिटल गैप का एक हिस्सा जो है किससे, कैपिटल या लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करते हैं, तो इसे हम लोग मार्जिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा वर्किंग कैपिटल गैप को निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो वर्किंग कैपिटल गैप को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा what is the formula to calculate the working capital gap? So the formula to calculate working capital gap is अभी मैंने बताया था कि WCG इज इक्वल टू CA माइनस CLOBB होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल का दूसरा डेफिनेशन क्या है? इट इज CA माइनस CL। NWC क्या रिप्रेजेंट करेगा? मार्जिन को या लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, मार्जिन बोले या नेट वर्किंग कैपिटल बोले एक ही चीज है। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है? मार्जिन को। मैंने अभी आपको बताया था ना कि WCG का कुछ हिस्सा जो है आप लॉन्ग टर्म सोर्स से फंडिंग करते हैं, यानी WCG का कुछ हिस्सा आप कहां से फंडिंग कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म सोर्स से, ठीक है। तो उस हिस्सा को आप लोग क्या बोलते हैं? उस हिस्सा को हम लोग कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल या मार्जिन, राइट।
तो ये पॉइंट समझिए, वर्किंग कैपिटल गैप का कुछ हिस्सा आपको फंडिंग करना पड़ता है अपने लॉन्ग टर्म सोर्स से, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड मार्जिन, प्लीज रिमेंबर इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे NWC क्या डिपेंड करता है, ऑब्वियसली मार्जिन को डिपेंड करता है। करंट रेशियो क्या मेजर करता है, तो करंट रेशियो CA/CL होता है, ये मेजर करता है आपके लिक्विडिटी को, इट मेजर्स द लिक्विडिटी, करंट रेशियो मेजर्स द लिक्विडिटी। करंट रेशियो 1 से नीचे परसिव कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा करंट रेशियो जो है 1 से नीचे जो है अनफेवरेबल होता है। आपका टर्नओवर मेथड का ऑरिजिन क्या है, तो नायक एंड वाज कमेटी का रिकमेंडेशन, अभी मैंने डिस्कस किया था। टर्नओवर मेथड क्या कैलकुलेट करता है, प्रॉफिट मार्जिन को या हमारा वर्किंग कैपिटल लिमिट को, तो ये वर्किंग कैपिटल लिमिट को कैलकुलेट करता है, WCL, राइट। तो मिनिमम मार्जिन रिकमेंडेशन कितना है टर्नओवर मेथड के द्वारा वर्किंग कैपिटल लिमिट को निकालने के लिए, तो वो है 20, मार्जिन है 5%, ठीक है। मार्जिन कितना है, 5%। मार्जिन का मैंने बोला था कि वर्किंग कैपिटल लिमिट का कुछ हिस्सा जो है WCG, वर्किंग कैपिटल गैप का कुछ हिस्सा आपको मार्जिन से लेना है, आपको लॉन्ग टर्म सोर्स से लेना है, उसी हिस्सा को हम लोग मार्जिन कहते हैं। तो इनका कहना है कि 20%, ये 5%, ठीक है। तो एक्सेस नेट वर्किंग कैपिटल क्या अफेक्ट करता है, तो ये बैंक के फाइनेंसिंग लिमिट को अफेक्ट करता है। अब दोस्तों अब आगे पॉइंट को देखते हैं। टर्नओवर मेथड जो है अलग अलग कैटेगरीज में अप्लाई होता है, इट अप्लाइज टू डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर। अब देखिए MPVF होता है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, और कैश बजट सिस्टम इसमें चॉइस है, ये भी मेथड है जिसके थ्रू हम लोग परमिसिबल कितना बैंक फाइनेंस करेगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं MPVF के माध्यम से, राइट। तो ये इसका चॉइस अवेलेबल है हमारे पास। तो एक्चुअल ड्राइंग जो है आप ड्राइंग पावर निकालते हैं सबसे पहले, फिर आप प्रोजेक्ट के एनुअल टर्नओवर की कितना रीजनेबल है वो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं वो उनको लिमिट मिल जाता है उनके PAT का 25%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 25% मिल जाता है, और मार्जिन चाहे तो 30% तक बढ़ जाता है। MPVF क्या करता है दोस्तों कि ये वर्किंग कैपिटल को एसेस करता है बेस्ड ऑन बोरोवर्स बिजनेस एंड इंडस्ट्री साइकिल, और ये करंट एसेट और लायबिलिटी को एज पर CMA स्टैंडर्ड क्लासिफाई करता है। करंट एसेट आइडियल कितना होना चाहिए, तो 1.33 होना चाहिए, और कुछ पोटेंशियल रिलैक्सेशन के साथ। तो दोस्तों पहला सवाल ये है कि किस एस्पेक्ट वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर का कौन सा एस्पेक्ट है जहाँ पे टर्नओवर मेथड अप्लाई होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये अप्लाई होता है दोस्तों डिफरेंट कैटेगरीज में, डिपेंड करता है कि वर्किंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर कितना है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या चॉइस अवेलेबल है MPVF के कॉन्टेक्स्ट में, तो देखिए चॉइस जो है वो डिपेंड करता है कि MPVF और कैश बजट सिस्टम किसे आप यूज़ करते हैं। एक्चुअल ड्राइंग को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो एक्चुअल ड्राइंग को आप ड्राइंग पावर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ड्राइंग पावर, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा स्टेप है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट प्रोसेस में, अब देखिए वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट प्रोसेस में कौन सा इसमें से स्टेप है, करंट रेशियो निकालना, हिस्टोरिकल टर्नओवर को रिव्यू करना, वेरीफाइंग द रीजनेबलनेस ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, तो ये सही जवाब है। आप अपने प्रोजेक्टेड टर्नओवर का रीजनेबलनेस कितना रीजनेबल है वो देखते हैं। क्या लिमिट है SME का अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट विद मार्जिन इंक्रीज फॉर डिजिटल सेल, सो इट इज नथिंग बट 25% ऑफ PAT, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों पॉजिटिव NWC होने का मतलब ये हुआ कि नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, इसका मतलब कि करंट एसेट आपके करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, इस कारण से करंट रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा होगा। नेगेटिव NWC होने का मतलब ये हुआ कि आपका जो देखिए NWC का आप फॉर्मूला जानते हैं ना, NWC होता है CA-CL, ये यदि नेगेटिव है इसका मतलब CA जो है आपका CL से कम है, ठीक है। तो ये होता है इस कारण से आपका करंट रेशियो 1 से कम हो जाएगा, और NWC यदि 0 है मतलब करंट रेशियो 1 होगा। टर्नओवर मेथड के कारण जो करंट रेशियो आता है वो नियर अबाउट 1.25 आता है। MPVF मेथड का जो करंट रेशियो आता है 1.33 आता है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग का फोकस होता है कि आप इंश्योर करें कि आपका जो फंड है उसका प्रॉपरली यूज हो। मॉनिटरिंग क्रेडिट मॉनिटरिंग बोलते हैं ना, क्यों करते हैं हम लोग क्रेडिट मॉनिटरिंग, ताकि हमारा फंड का प्रॉपरली यूज हो। फॉलोअप के अंदर आप टाइमली रिकवरी कर लें एडवांस का, और अलग अलग स्टेज में कॉम्प्लाइंस को फॉलो करें। सो दीज आर थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर फॉलोअप। फॉलोअप का क्या मीनिंग है वो यहाँ देख सकते हैं आप। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका टर्नओवर में यदि कमी आएगा वो इंडिकेट करता है स्टिकी टेंडेंसी। एक होता है MSOD। MSOD क्या होता है, मंथली सेलेक्ट ऑपरेशनल डेटा। ये रिक्वायर्ड नहीं होता है ट्रेडिंग यूनिट के लिए। MSOD एप्लीकेबल नहीं होता है वैसे यूनिट के लिए जिनका वर्किंग कैपिटल जो है 10 लाख से कम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन NWC जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि करंट रेशियो आपका 1 से ज़्यादा है, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NWC नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ कि NWC नेगेटिव होने का मतलब कि करंट रेशियो आपका 1 से कम है, ठीक है। NWC 0 होने का मतलब कि करंट रेशियो 1 के बराबर है। करंट रेशियो जो है वाट करंट रेशियो डज द तो मैंने बोला था आपको कि टर्नओवर मेथड में जो करंट रेशियो होता है वो अराउंड 1.25 होता है। सो इट इज़ अराउंड 1.25%, प्लीज़ रिमेंबर इट।
Okay, so it is about 1.25%. Current ratio does MPVF assessment typically result in? तो MPVF assessment का जो current ratio होता है वो obviously 1.33 के क्रॉस होता है. प्राइमरी फोकस का मॉनिटरिंग का प्राइमरी फोकस क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि आपके एंड यूज ऑफ फंड जो है प्रॉपर हो, ठीक है. फॉलोअप का मेन इम्फेसिस क्या है कि आपका एडवांस का टाइमली रिकवरी हो और कॉम्प्लायंस हो अलग अलग स्टेजेस में. MSOD के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किया. अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं. सिक्योरिटी को आप बैकअप के रूप में यूज करते हैं लोन डिफॉल्ट होने के केस में. एक जो मेथड है चार्ज क्रिएट करने का वो प्रॉपर्टी और उसके नेचर पे डिपेंड करता है. अब देखिए दोस्तों चार्ज क्रिएशन के बारे में बताया जा रहा है कि चार्ज क्रिएशन एक तरीका है, आप एक लोन को सिक्योर कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट के माध्यम से, प्रॉपर्टी के माध्यम से, डेब्ट के माध्यम से. जो ट्रांसफर है उसमें एक असाइनर होता है, एक असाइनी होता है. चार्ज का मतलब होता है कि ट्रांसफर या आप एसेट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं. सेट ऑफ जो है डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट को कंबाइन करता है. राइट ऑफ सेट ऑफ एक स्टैट्यूटरी हो सकता है या एग्रीड अपॉन हो सकता है. हाइपोथिकेशन क्या करता है कि फ्लोटिंग एसेट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है. बोरोवर जो है हाइपोथिकेटेड, ध्यान रखिएगा हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि जो भी एसेट है, जिस भी एसेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें उसका पॉइजन किसके पास रहेगा, उसका पॉइजन रहेगा बोरोवर के पास. प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. द पॉइजन इज विद द बोरोवर. OCC, KCC एंड व्हीकल लोन ये सभी हाइपोथिकेशन को यूज करते हैं चार्ज को क्रिएट करने के लिए, राइट, क्योंकि बोरोवर के पास पॉइजन रहता है. गुड्स को यदि आप यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी के रूप में तो उसे प्लेज कहते हैं. KCC में चार्ज जो होता है वो इम्प्लाइड प्लेज होता है, राइट. तो गुड्स को आप सिक्योरिटी के रूप में यूज कर रहे हैं तो प्लेज हो गया. पहला सवाल है कि आप क्या प्राइमरी पर्पज है सिक्योरिटी लेने का लोन के कॉन्टेक्स्ट में. तो मेन है कि इसको आप बैकअप के रूप में यूज करेंगे यदि लोन डिफॉल्ट हो जाए. कैसे क्रिएटिंग अ चार्ज का मेथड क्या है, तो आप लेंथ ऑफ लोन और टाइप ऑफ, तो ऑब्वियसली टाइप ऑफ प्रॉपर्टी उसके नेचर के बेसिस पे आप चार्ज के मेथड को डिसाइड करते हैं. ऑप्शन बी सही जवाब है. चार्ज क्रिएशन लोन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, तो चार्ज क्रिएशन एक तरीका है जिसके थ्रू आप लोन को सिक्योर कर सकते हैं राइट के ट्रांसफर से, प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से या डेब्ट के ट्रांसफर से. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ डेब्ट में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्ज क्रिएशन. असाइनर और असाइनी इन्वॉल्व होते हैं. चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है कि आप जो है एसेट इंटरेस्ट क्रिएट किए, जो जिसका एसेट अलग अलग एसेट का नाम अलग अलग रखा गया, जैसे हाइपोथिकेशन, प्लेज, राइट, दीज आर द डिफरेंट नेम्स. जो हमारा सेटअप का प्रोसेस होता है वो डेटर और क्रेडिटर के कॉन्टेक्स्ट में क्या इन्वॉल्व होता है. मार्जिन द अकाउंट इनटू वन, क्लोजिंग द डेटर अकाउंट. इसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो है आप डेटर के डेब्ट को उसके क्रेडिट से कॉम्पेंसेट करते हैं. ऑप्शन डी सही जवाब है. राइट ऑफ सेटअप को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, तो इसको आप इस्टेब्लिश करेंगे स्टैट्यूटरी या म्यूचुअल एग्रीमेंट से. प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हाइपोथिकेशन का, इन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट इन एसेट. तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोथिकेशन का कि बोरोवर रिटेन पॉइजन ऑफ द हाइपोथिकेटेड एसेट. चार्ज क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह का लोन टिपिकली हाइपोथिकेशन को यूज करता है, मैंने बताया था OCC, KCC और व्हीकल लोन जो है हाइपोथिकेशन को यूज करता है. गुड्स को आप यदि सिक्योरिटी के रूप में यूज कर रहे हैं लोन के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या टर्म यूज करते हैं, तो गुड्स के केस में प्लेज टर्म यूज करते हैं. इम्प्लाइड प्लेज जो है किस तरह के लोन में चार्ज होता है, तो मैंने बताया था KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड में इम्प्लाइड प्लेज चार्ज होता है. दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी लोन जो है प्लेज को यूज करता है चार्ज के रूप में, प्लीज रिमेंबर. फिर दोस्तों प्लेज के अंदर गुड्स को सिक्योरिटी में रखा जाता है फॉर अ डेब्ट और प्रॉमिस. इसको यह आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर. पॉनर जो है गुड्स प्रोवाइड करेगा, पॉनी उसको रखेगा. मॉर्गेज जो है प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है लोन या ऑब्लिगेशन के लिए. मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेज डीड होते हैं. जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शॉर्ट में से TP बोलते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को गवर्न करता है. TP एक्ट के अंदर वॉलंटरी ट्रांसफर आएगा, जो लॉ के द्वारा ऑपरेशन है वो नहीं आता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम examination point of view. Okay, so now let's continue our discussion further. TP एक्ट जो है लिविंग पर्सन के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है. इसके अंदर इनहेरिटेंस, इंसॉल्वेंस, फॉरफीचर या डेक्री बेस्ड ट्रांसफर को एक्सक्लूड किया गया है. TP एक्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन को गवर्न करता है. TP एक्ट जो है प्रॉपर्टी डिस्पोजल बाय विल और प्रॉपर्टी सक्सेशन को कवर नहीं करता. पहला सवाल, किस तरह के लोन में प्लेज को चार्ज के रूप में यूज किया जाएगा, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, तो ऑब्वियसली सही जवाब है गोल्ड ज्वेलरी लोन, क्योंकि मैंने बताया था प्लीज, राइट, यहाँ पे मूवेबल आर्टिकल्स होते हैं. इस लोन के कॉन्टेक्स्ट में प्लेज क्या आता है, तो प्लेज में दोस्तों गुड्स को आप सिक्योरिटी के रूप में यूज करते हैं डेब्ट और प्रॉमिस के लिए. यह है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कौन गुड्स को प्लेज में, हु प्रोवाइड गुड्स इन अ प्लेज एंड हु टेक्स देम, तो गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा, पॉनर गुड्स प्रोवाइड करेगा और पॉनी उसे लेगा. मॉर्गेज जो है क्या इन्वॉल्व होता है, व्हाट डज मॉर्गेज इन्वॉल्व इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोन, तो मॉर्गेज में दोस्तों मैंने बताया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी होता है. मॉर्गेज M से याद रखिए, M से मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे याद रख सकते हैं.
मॉर्गेज को क्या कंपनी करता है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में? तो मॉर्गेज को मॉर्गेज डीड कंपनी करता है। कौन सा एक्ट है जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर को गवर्न करता है? तो मैंने बताया था कि इसके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। किस तरह का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर को किया जाता है? लॉ के ऑपरेशन को के द्वारा जो ट्रांसफर होता है उसको नहीं कवर किया जाता। किस तरह के ट्रांसफर में टीपी एक्ट अप्लाई होता है? मैंने बताया था कि लिविंग पर्सन के बीच में जो होता है ट्रांसफर उसमें ही अप्लाई होता है। किस तरह के ट्रांसफर को एक्सक्लूड किया गया है टीपी एक्ट से? तो इनहेरिटेंस, इंसॉल्वेंसी, फॉरफेचर, डिक्री बेस्ड ट्रांसफर को एक्सक्लूड किया गया है। किस तरह के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में टीपी एक्ट गवर्न करता है? तो टीपी एक्ट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी में गवर्न होता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टीपी एक्ट जो है क्या कवर नहीं करता? तो टीपी एक्ट प्रॉपर्टी डिस्पोजल को नहीं कवर करता है। अब दोस्तों हम लोग सिंपल मॉर्गेज की बात करते हैं। तो सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है कि मॉर्गेजर का कमिटमेंट होता है कि वो रिपे कर लेगा बिना प्रॉपर्टी को पॉजेस किए हुए। मॉर्गेजी जो है प्रॉपर्टी बेच सकता है यदि जरूरी लगे तो। अब एक होता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। इसमें कंडीशन होता है कि सेल एब्सोल्यूट हो जाएगा, वाइड हो जाएगा या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा पेमेंट के बेसिस पे, राइट। ये होता है हमारा कंडीशनल सेल। फिर नेक्स्ट है कि ट्रांसफॉर्मेशन टू सेल कैन बी इन्फोर्स थ्रू अ फोरक्लोजर सूट। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या करता है क्रेडिटर को कि वो प्रॉपर्टी को पॉजेस करे रेंट के माध्यम से, प्रॉफिट के माध्यम से, फॉर इंटरेस्ट और मॉर्गेज पेमेंट। इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा मॉर्गेजी को और एक रिकन्वेंस प्रोविजन रहेगा अपॉन फुल पेमेंट। पहला क्वेश्चन है कि सिंपल मॉर्गेज में मॉर्गेजर का क्या कमिटमेंट रहता है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी पोजीशन? मॉर्गेजर जो है प्रॉपर्टी पोजीशन को गिव अप कर देता है, मॉर्गेजर रिटेन करता है, मॉर्गेजर ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी को या बेच सकता है। तो मॉर्गेजर जो है रिटेन करता है प्रॉपर्टी पोजीशन, ठीक है। तो मॉर्गेज, क्योंकि देखिए मॉर्गेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी आता है, सो मॉर्गेजर रिटेन। क्या कंडीशन है मॉर्गेज बाय कंडीशनल? देखिए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन ये होता है कि सेल एब्सोल्यूट होगा, वाइड होगा, प्रॉपर्टी बेस्ड ट्रांसफर ऑन पेमेंट, ठीक है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन टू सेल को इन्फोर्स कर सकते हैं मॉर्गेज के कंटेक्स्ट में? एक फोरक्लोजर सूट के माध्यम से। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज क्या अलाउ करता है जिस क्रेडिटर को करने के लिए प्रॉपर्टी के साथ? तो यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज तो प्रॉपर्टी को पॉजेस कर सकते हैं और रेंट और प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं इंटरेस्ट और मॉर्गेज पेमेंट के लिए। इंग्लिश मॉर्गेज का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजी जो होता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है मॉर्गेजी को एक रिकन्वीनियंस प्रोविजन के द्वारा। इक्विटेबल मॉर्गेज टाइटल डीड को यूज करता है सिक्योरिटी के लिए। रिवर्स मॉर्गेज जो है टैक्स फ्री इनकम प्रोवाइड करता है ओल्डर इंडिविजुअल को। और मॉर्गेज बैक लोन, इसको MBL कहते हैं, इस कारण से फोरक्लोजर हो जाएगा यदि डेटर जो है पे नहीं कर पाता है टाइमली। दोस्तों डीड ऑफ असाइनमेंट ट्रांसफर ऑनरशिप और राइट फ्रॉम वन पार्टी और टू अनदर। तो डीड ऑफ असाइनमेंट होता है वो क्या करता है कि ऑनरशिप या राइट को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफर करता है। असाइनमेंट क्या होता है दोस्तों? तो असाइनमेंट इज यूज्ड एज चार्ज फॉर लोन अगेंस्ट बुक डेप्ट। तो बुक डेप्ट के अगेंस्ट या इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उसे हम लोग असाइनमेंट कहते हैं। डेटर जो है पेमेंट को अप्रोप्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल डेट के लिए। सो डेटर कैन अप्रोप्रिएट द पेमेंट फॉर मल्टीपल डेप्ट। लीन एक क्रेडिटर का कोलेटरल राइट होता है कि वो जिससे वो डेप्ट पेमेंट को क्या करता है, सिक्योर करता है। लीन को आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो अ लीन कैन बी इस्टेब्लिश थ्रू कोर्ट ऑर्डर से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्रेडिटर जो है एसेट को सीज कर लेंगे यदि बोरोवर अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं करता। एक लीन इंश्योर करता है कि अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया जाएगा, जैसे कि लोन रिपेमेंट। किस सिटी में इक्विटेबल मॉर्गेज कॉमनली यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए? तो ऑल सिटी, सेलेक्टेड सिटी, रूरल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो दोस्तों मैंने बताया था कि सेलेक्टेड सिटी में ही यूज किया जाता है। रिवर्स मॉर्गेज ओल्डर इंडिविजुअल को क्या प्रोवाइड करेगा? तो टैक्स फ्री इनकम प्रोवाइड करेगा विथ लैंडर पेइंग दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा मॉर्गेज बैक लोन का यदि डेटर पे नहीं करता? तो डेटर ऑप्शन नहीं कर रहा है कि डेटर रीनेगोशिएट कर लेगा टर्म ऑफ लोन को, डेटर रिसीव करेगा लोअर इंटरेस्ट रेट, तो इस कारण से फॉरक्लोजर हो जाएगा। डीड ऑफ असाइनमेंट क्या करता है? तो डीड ऑफ असाइनमेंट क्या करता है कि जो ऑनरशिप है या जो राइट है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असाइनमेंट को कॉमनली किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है लोन के चार्ज के लिए? तो लोन अगेंस्ट बुक डेप्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी को हम लोग असाइनमेंट कहते हैं। डेटर क्या कहता है रिगार्ड टू पेमेंट फॉर मल्टीपल डेप्ट? तो डेटर क्या करेगा दोस्तों? डेटर एन अप्रोप्रिएट पेमेंट फॉर मल्टीपल डेप्ट। लीन क्या होता है डेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में? तो लीन बेसिकली एक लीगल क्लेम होता है प्रॉपर्टी पे एज कोलेटरल फॉर सिक्योरिंग डेप्ट पेमेंट। डेप्ट पेमेंट को सिक्योर करने के लिए एक लीगल क्लेम होता है प्रॉपर्टी पे जिसको हम लोग लीन बोलते हैं। हाउ कैन लीन बी स्टैब्लिश? तो लीन को स्टैब्लिश करने के लिए कोर्ट ऑर्डर के थ्रू कर सकते हैं आप। क्रेडिटर क्या करेगा यदि बोरोवर अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं करता है? तो वो एसेट को सीज कर लेगा अपने डेप्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। लीन क्या इंश्योर करता है अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में? ये इंश्योर करता है कि जो हमारा अंडरलाइंग ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल होगा, जैसे कि लोन का रिपेमेंट होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और एक वैलिड चार्ज को इस्टेब्लिश करते हैं बैंक के लिए।
एक डॉक्यूमेंट पार्टी एक अटेस्टिंग विटनेस नहीं हो सकते हैं। अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है जब भी मैंडेटरी हो तब। किसी नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को अटेस्ट करना में स्टाम्प ड्यूटी लगता है। विटनेस को अटेस्ट करने में विटनेस और रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ एजुकेशन। रेवेन्यू स्टाम्प जो है नेबरिंग स्टेट से ऑब्टेन कर सकते हैं। रेवेन्यू स्टाम्प जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होता है, यूजेस डिपेंड करता है गवर्नमेंट बैंक पे। दोस्तों जो हमारे अंडर स्टाम्प डॉक्यूमेंट होते हैं ये कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होते हैं। जो प्रॉपर्टी एफिक्स करता है रेवेन्यू स्टाम्प को विद स्टेट एल्बम। लिमिटेशन लॉ क्या करता है दोस्तों कि जो हमारे लीगल एक्शन है ना उनके लिए टाइम फ्रेम सेट करता है। जैसे कि देखिए जो भी सूट फाइल होगा प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद उसको डिसमिस किया जा सकता है। और इसमें स्टार्टिंग डेट को एक्सक्लूड किया जाता है जब भी आप लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। जैसे एजुकेशन लोन है, इसका लिमिटेशन स्टार्ट कब से होता है, जब से रिपेमेंट कॉमेंस हुआ। एजुकेशन लोन जैसे माइनर को दिया गया, इसमें एओडी या एलओआर चाहिए स्टूडेंट से भी और गार्जियन से भी, राइट। उसके बाद दोस्तों इसमें कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होता है, इट एक्सक्लूड द पीरियड अब्रोड वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन पीरियड। यानी कितने दिन बाहर थे, विदेश में थे, उसको आपको एक्सक्लूड करना है। ये लोकल लॉ को फॉलो करेगा जब आप एओडी को ऑब्टेन करेंगे बेस्ड ऑन बोरोवर रेसिडेंस। तो पहला सवाल ये है कि अंडर स्टाम्प डॉक्यूमेंट का एडमिसिबिलिटी का क्या स्टेटस है, तो इसे एडमिसिबल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रेवेन्यू स्टाम्प को कैसे एफिक्स किया जाएगा फॉर प्रॉपर वैलिडिटी, तो इसमें दोस्तों आपको स्टेट एल्बम को एफिक्स किया जाएगा। लिमिटेशन लॉ टाइम फ्रेम क्यों सेटअप किया, क्या सेटअप किया गया, तो इलीगल एक्शन के लिए। व्हाट कैन हैपन टू सूट आफ्टर द प्रिस्क्राइब लिमिटेशन पीरियड, तो प्रिस्क्राइब उसको डिसमिस कर सकते हैं आप। लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने में क्या एक्सक्लूड करना है, तो पहले डेट को स्टार्टिंग डेट को एक्सक्लूड करना है। लिमिटेशन पीरियड जो एजुकेशन लोन का होता है वो कब स्टार्ट होता है, जिस दिन से डिसबर्समेंट हुआ। क्या रिक्वायरमेंट होता है एजुकेशन लोन का माइनर के लिए, तो माइनर के लिए एओडी या एलओआर चाहिए स्टूडेंट से और गार्जियन से। किस चीज़ को एक्सक्लूड किया जाएगा, जब आप लिमिटेशन पीरियड को लोन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पीरियड अब्रोड कितने दिन थे उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। अब एओडी जो है पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि बैंकर के द्वारा विटनेस किया गया उससे ऑब्टेन कर सकते हैं। दोस्तों जो बिल एक्सचेंज साइट पे पेबल होता है, साइट मतलब समझते हैं ना अपॉन प्रेजेंटेशन, उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 साल का है। अब देखिए थोड़ा मैं लिमिटेशन पीरियड बता देता हूँ कितना है दोस्तों, 3 साल का है साइट पेमेंट पे। यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज का लिमिटेशन पीरियड 3 साल का है। गारंटी के केस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी 3 साल है। मॉर्गेज इन्फोर्समेंट के केस में जो लिमिटेशन पीरियड है वो 12 साल का है, जब से पैसा ड्यू हो जाए। मॉर्गेज फोरक्लोजर के केस में यहाँ पे 12 साल का लिमिटेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में 30 ईयर्स का लिमिटेशन है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में 30 ईयर्स का पोजीशन है। यदि कोर्ट लिमिटेशन पीरियड के दिन क्लोज हो रहता है, ठीक है, या सूट या अपील के दिन क्लोज रहता है, तो जब कोर्ट रीओपन होगा तब ये एप्लीकेशन को फाइल किया जाएगा। और कैश क्रेडिट अकाउंट का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है लास्ट क्रेडिट और डेबिट एंट्री के दिन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एओडी यानी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट कहाँ से ऑब्टेन किया जाएगा, तो इसको आप पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस से ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि बैंकर अब्रूड के द्वारा विटनेस किया गया हो। एओडी का टाइम फ्रेम क्या है स्टाम्पिंग का, तो विद इन 3 मंथ। डिमांड फ्रॉम डीपीएन का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, डीपीएन का लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल का। बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि साइट पेबल इसका लिमिटेशन पीरियड कितना होता है 3 साल का। यूजांस बिल ऑफ एक्सचेंज का लिमिटेशन पीरियड कितना है 3 साल का, जब से ड्यू डेट हो रहा है। गारंटी का लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, जिस दिन से इन्वोकेशन स्टार्ट हो गया उसी दिन से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाता है। मॉर्गेज इन्फोर्समेंट का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, जब पेमेंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है तो 12 साल होता है। मॉर्गेज फोरक्लोजर का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है, ये भी 12 साल होता है। नेक्स्ट है कि पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है 30 ईयर्स। क्या होगा यदि कोर्ट जो है लिमिटेशन पीरियड के स्टार्टिंग डेट पे क्लोज है, तो यदि कोर्ट क्लोज रहती है दोस्तों यदि कोर्ट क्लोज रहती है
तो उस केस में लिमिटेशन पीरियड सूट या अपील या एप्लीकेशन जो है फाइल किया जाएगा जब कोर्ट रीओपन होगा। कैश क्रेडिट अकाउंट का लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, तो इसका लिमिटेशन पीरियड है 3 साल का, जिस दिन से लास्ट क्रेडिट या डेबिट हुआ, और इसमें इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन इज नॉट कंसिडर्ड। आरबीआई ने दोस्तों प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाया है इनकम रिकॉग्निशन के लिए, एसेट क्लासिफिकेशन के लिए और प्रोविजनिंग के लिए। इनकम रिकॉग्निशन ऑब्जेक्टिव होगा, रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पे बेस्ड होगा। एसेट क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को फॉलो करेगा यूनिफॉर्म एप्लीकेशन के लिए। सो दीज आर द पॉइंट विच वी नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा कि नॉट ओवरड्यू इंटरेस्ट या प्रिंसिपल फॉर मोर देन टर्म लोन के केस में यदि हमारा ओवरड्यू इंटरेस्ट जो है 90 दिन से ज़्यादा या प्रिंसिपल 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू है तो वो एनपीए में चला जाएगा। ठीक है, ओडीसीसी का क्राइटेरिया क्या है, जब वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तब एनपीए कहलाएगा। मान लीजिए कि बिल परचेज है या बिल डिस्काउंटेड है, उस केस में यदि बिल ओवरड्यू 90 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो वो एनपीए में चला जाता है। यदि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यदि 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू है तो एनपीए में चला जाएगा। यदि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट यदि ओवरड्यू है 1 क्रॉप सीजन का तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो वो एनपीए में चला जाएगा। तो आरबीआई ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया प्रूडेंशियल नॉर्म है बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो इसमें इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, ये 3 चीज़ इंट्रोड्यूस किया प्रूडेंशियल नॉर्म के लिए। हाउ डज, कैसे इनकम रिकॉग्निशन को डिटरमाइन करते हैं आरबीआई के नॉर्म के अनुसार, तो दोस्तों इसको ये बेस होता है ऑब्जेक्टिव पे और रिकवरी के रिकॉर्ड पे। एसेट क्लासिफिकेशन क्या फॉलो करता है, इट शुड बी बेस्ड ऑन बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, इट शुड बी सब्जेक्टिव। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को फॉलो करेगा और यूनिफॉर्म एप्लीकेशन के लिए। कौन सा फैक्टर है जो कि एसेट के प्रोविजनिंग को डिटरमाइन करता है बैंक में, तो जिसमें एसेट क्लासिफिकेशन, टाइम नॉन परफॉर्मिंग एंड सिक्योरिटी वैल्यू। आरबीआई के अनुसार कौन सा क्राइटेरिया एनपीए को डिफाइन करता है, तो ओवरड्यू इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉर मोर देन 90 डेज टर्म लोन, और ओडीसीसी अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर, बिल ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तो दोस्तों देखिए इसमें सही जवाब है ये सभी के सभी हैं। एनपीए देखिए, एनपीए टर्म लोन का कब होता है, यदि इंटरेस्ट ओवरड्यू जो है 90 दिन से ज़्यादा हो। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस जो है सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो गया है 90 दिन तक। आउट ऑफ ऑर्डर यदि मान लीजिए क्रेडिट ही नहीं है तो उस केस में आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आप इंटरेस्ट को 90 दिन तक कवर कर रहे हैं। ओवरड्यू का मतलब कि यदि पेमेंट आपने ड्यू डेट तक दिया ही नहीं है। तो एनपीए पे कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं होगा इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट। जो सर्टेन एडवांस होते हैं उन पर जो इंटरेस्ट होता है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ड्यू डेट पे। जो फी और कमीशन है डेब्ट रीनेगोशिएशन का वो रिकॉग्नाइज होता है ओवर द टाइम। पहला सवाल है कि टर्म लोन को कैसे क्लासिफाई करेंगे एनपीए में, तो मैंने बताया था कि 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाए, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू हो जाए तो उस केस में होता है। नेक्स्ट है कि आउट ऑफ ऑर्डर कैसे क्लासिफाई करेंगे आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार, तो देखिए सिंपल सी बात है कि जो आपका बैलेंस जो लिमिट है सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उस केस 90 दिन तक, तो उसको हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप क्रेडिट है ही नहीं खाते में, केवल इंटरेस्ट कवर कर रहा है, तो उस केस में आउट ऑफ ऑर्डर को कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि कोई क्रेडिट इंटरेस्ट नहीं हो 90 दिन तक तो उस केस में वैसा होगा। लोन को आप ओवरड्यू कब क्लासिफाई करते हैं, तो लोन को ओवरड्यू तब क्लासिफाई करते हैं जब पेमेंट जो है ड्यू डेट तक नहीं किया गया हो, इसको हम लोग ओवरड्यू बोलते हैं। आप इंटरेस्ट इनकम को कैसे ट्रीट करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का एज पर आरबीआई गाइडलाइन, तो नो इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड एज एनपीए इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गारंटी अकाउंट। कैसे फी और कमीशन जो है डेब्ट रीनेगोशिएशन को रिकॉग्नाइज किया जाता है आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब रीनेगोशिएशन फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा तब। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, उसके बेसिस पे एमसीक्यूज हैं। यदि आप इस पीडीएफ को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको सिंपली 99 रुपीज़ पे करना है और इस पार्टिकुलर पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको फॉर्मूला पीडीएफ भी मिल जाएगा, मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन पीडीएफ भी मिल जाएगा जिसको हम लोग कैप्सूल कोर्स करते हैं। तो विशेष जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इस पार्टिकुलर कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।